شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی ISPR کی جانب سے بتایا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی شاہ زیب شہید ہوا اور 25 سالہ شاہ زیب کا تعلق کوٹلی ستیاں سے ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے ISPR کی جانب سے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ جو فائرنگ کا تبادلہ ہے دہشت گردوں کے ساتھ دتا خیل جو شمالی وزیرستان ضلع ہے اس کے علاقے دتا خیل میں ہوا۔ سیکورٹی فورسز ہیں ان کی جانب سے بھرپور اور مؤثر جواب دیا گیا۔ شدید فائرنگ کے نتیجے میں سپاہی شاہ زیب امتیاز جن کی عمر 25 سال ہے اور جن کا تعلق کوٹلی ستیاں سے تھا، وہ بہادری سے لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش کر گئے۔ اس وقت علاقے میں جو ہے وہ کلیئرنس آپریشن جو ہے وہ جاری ہے تاکہ وہاں پہ موجود دہشت گردوں کو جو ہے وہاں سے ان کو خاتمہ کیا جا سکے۔ بہت شکریہ محمد عمران، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ عام انتخابات کی تاریخ ملنے تک جدوجہد جاری رکھوں گا، سپریم کورٹ فیصلے کے بعد پوری قوت سے لانگ مارچ لاؤں گا۔ چیئرمین PTI عمران خان نے بنی گالہ میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے طاقتور حلقے سیاسی اور معاشی بحران سے پریشان ہو چکے، حکومت 1-1.5 ماہ میں رخصت ہو جائے گی۔ موجودہ سیاسی عدم استحکام سے نکلنے کا واحد راستہ عام انتخابات ہیں۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد پوری قوت سے لانگ مارچ لے کر اسلام آباد پہنچوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت سے نکلنے کے بعد ان کے پاس 2 راستے تھے، طاقتور حلقوں سے معافی مانگ کر پاؤں پکڑتا یا عوام کے پاس جاتا، اور انہوں نے دوسرا راستہ اپنایا۔ اس وقت پاکستان کو IMF اور دیگر ممالک امداد نہیں کر رہے، عالمی اداروں کو بھی موجودہ حکومت کی نااہلی کا یقین ہے۔ تحریک انصاف نے اتحادی حکومت کا بجٹ مسترد کر دیا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں کہ حکمران کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ہمارا گروتھ ریٹ 6% تھا، یہ 5% کی بات کر رہے ہیں۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ جولائی میں ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت 310 روپے لیٹر تک جائے گی، بجلی کا یونٹ 40 روپے تک پہنچے گا۔ مزمل اسلم نے بھی بجٹ پر تنقید کی۔ اتحادی حکومت کا پہلا بجٹ تحریک انصاف کی سخت تنقید، میزانی عوام دشمن قرار۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ نمبر کبھی جھوٹ نہیں بولتے، یہ ہمیشہ ان کا منہ چڑھائیں گے۔ حکمران کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ہمارا گروتھ ریٹ 6% تھا، یہ 5% کی بات کر رہے ہیں۔ کتنا بجٹ کا خسارہ؟ 4.2 ٹریلین روپیز، جو میں نے ان کو کہا تھا کہ اتنا ہی ہوگا، وچ از 6.3% آف GDP۔ تو ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ نمبرز جھوٹ نہیں بولتے۔ یار کس کو بے وقوف بنا رہے ہو بھائی؟ جیسے 60 روپے کا امپیکٹ آیا تیل کی اور ڈیزل کی پرائسز پہ، وہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس وہ 24 پہ چلی گئی ہے۔ بجلی اور گیس کی جب بڑھائیں گے تو ہمارے خیال میں یہ انفلیشن جو ہے یہ 25 سے 30% چلی جائے گی۔ PTI رہنما عمر ایوب کا کہنا تھا کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر 750 ارب کی لیوی لگائے گی۔ جولائی میں ڈیزل اور پیٹرول 310 روپے فی لیٹر، جبکہ بجلی کا 1 یونٹ 40 روپے تک پہنچ جائے گا۔ آپ کا ڈیزل اور پیٹرول جولائی میں اگلے مہینے یہ تقریباً 300 اور 310 روپے فی لیٹر پہ جائے گا۔ بجلی کی قیمت جو 16 روپے ہماری حکومت چھوڑ کی گئی تھی، وہ تقریباً اگلے مہینے ڈیٹ کے اندر یہ تقریباً 39-40 روپے فی یونٹ جائے گی ٹیکس کے ساتھ۔ مزمل اسلم نے دعویٰ کیا کہ امپورٹڈ حکومت نے غلط اعداد و شمار بتائے، بہت ساری چیزوں کو میزانیے میں چھپایا گیا، لگتا ہے یہ IMF پروگرام مکمل نہیں کر سکیں گے۔ 35% سے زیادہ مہنگائی ہوگی، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں بجٹ میں چھپا دی ہیں جس کا ذکر ہی نہیں کیا، اور ان ریئلسٹک، جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ IMF، کل مفتاح اسماعیل نے ڈیفرنٹ TV پروگرامز میں بھی اشارے دیے، ہمیں لگتا ہے کہ جو ہے IMF پروگرام مکمل نہیں کر سکیں گے یہ، یا IMF سے جو ابھی بھی یہ قسط نہیں لے کر آ سکیں گے۔ اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ یہ اتنا فضول بجٹ ہے کہ اس کی ردی کی ٹوکری میں بھی جگہ نہیں بنتی۔ عائشہ غوث پاشا کا کہنا ہے کہ بجٹ میں ایک ہی کوشش کی گئی ہے، عام آدمی پر کم اثر پڑے۔ ہم نہیں چاہتے قرض لیں اور عوام پر مزید بوجھ بڑھے۔ مزید کہا کہ زیادہ تر ٹیکس امیروں اور صاحب ثروت افراد پر لگایا گیا۔ وہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں گفتگو کر رہی تھی۔ ہماری فلسفی اس بجٹ کی یہ رہی ہے کہ ان مشکل اقدامات کا
कम अज़ कम असर पड़े एक आम आदमी पे। इस बजट में ऐसे मेजर्स लेकर आए हैं जो रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं एक आम आदमी को। उसमें चाहे आप BISP की एलोकेशन देखें, चाहे आप पेट्रोलियम की उसमें जो हम 2000 रुपये महीने एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो देखें, चाहे आप आटा घी चीनी पे जो प्राइसेस कम करके हम रेगुलेट कर रहे हैं आप उसको देखें। हमने जो एडिशनल टैक्सेस लगाए उनमें से कहीं एडिशनल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, क्योंकि हमें पता है उसका बोझ एक आम आदमी पे पड़ता है। वो जितना एडिशनल टैक्स एफर्ट है वो उमरा पे है, जो साहिब सरवत लोग हैं उन पे है। वज़ीर आला हमजा शहबाज का कहना है कि बजट में गरीब आवाम पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला जाएगा। बजट का महवर आम आदमी को रिलीफ देना होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है, सूरत हाल को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई से परेशान आवाम को रिलीफ देने के लिए जामे प्लान मुरतब किया जाएगा। बजट में महंगाई कंट्रोल करने के लिए खुसूसी तजवीज़ किए जाएंगे। पंजाब भर में सस्ते आटे की फराहमी का तारीख साज पैकेज जारी रखा जाएगा। आम आदमी की मुश्किलात कम करने के लिए मज़ीद इक़दाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई। वज़ीर ख़जाना पंजाब के हलफ का मामला भी एक बार फिर मुलतवी हो गया। मुस्लिम लीग नून ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर रहे। काबीना के हल्फ उठाने का मामला भी मुलतवी हो गया। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर मसाइल ताख़ीर की वजह बने। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी वज़ारत ख़जाना न मिलने पर अपने वज़रा को अहम महकमों के कलमदान फौरी देने की ख्वाहिशमंद है। हुकूमत का कलमदान से मुतालिक मामला तय न हुआ, जिस पर काबीना का दूसरा मरहला बजट सेशन के बाद होने का इम्कान है। वज़ीर आला ऑफिस ज़राए के मुताबिक महकमा ख़जाना पंजाब ने बजट तकरीर के पॉइंट्स अवैस लगारी को भिजवा दिए। पंजाब का बजट अवैस लगारी पेश कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने पंजाब हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। साबिक हुक्मरान जमात सूबाई असम्बली में अपना अपोजिशन लीडर लाएगी। PTI ने पंजाब में हुकूमत खत्म होने के बाद वापस पार्लियामान में दोबारा किरदार अदा करने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ ने मियां महमूद रशीद को पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने का इरादा कर लिया, जबकि मियां असलम इकबाल पंजाब असम्बली में डिप्टी अपोजिशन लीडर होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भारत में मुसलमान मुजाहिरीन पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल की सख्त मजम्मत की है। सदर मुमलिकत ने कहा है कि भारतीय हुकूमत की जानिब से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से 2 बेगुनाह मुजाहिरीन शहीद हुए, जबकि सैकड़ों को बिला जवाज़ गिरफ्तार किया गया। आलमी बरादरी हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया की संगीन सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जारी बयान में कहा कि मुजाहिरीन पर भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग की फुटेज खौफनाक है। पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों के साथ यकजहती का इजहार करता है। भारत तौहीन आमेज रिमार्क्स के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि गुजरावाला में लोड शेडिंग के दौरानिये में कमी ना हो सकी। शहरी इलाकों में 8 और देही इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जिससे शहरी परेशान हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे फाहद बशीर से। देखिए, गुजरांवाला में लोड शेडिंग के दौरानिये में कमी ना आ सकी। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे और देही इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इस लोड शेडिंग के बायस शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। घरेलू सार्फिन के साथ साथ जो ताजर हैं वो भी इस लोड शेडिंग की वजह से काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। 5-6 घंटे जा रही है लाइट। आम रूटीन के मुताबिक कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं, आम घरेलू सार्फिन भी मुतासर हैं, सभी पानी का मसला है और भी बहुत मसले हैं, कारोबार में भी परेशानी हो रही है। लेकिन ये है कि हुकूमत फ़िलहाल तो नाकामी की तरफ जा रही है। हुकूमत की जानब से दावा किया था कि लोड शेडिंग के दौरानिये को 3 घंटे तक ले आएंगे, लेकिन वो दौरान 3 घंटे की बजाय लोड शेडिंग के दौरानिये में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इस लोड शेडिंग की वजह से घर में पानी भी जो है वो दस्तयाब नहीं होता है। गर्मी भी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी की शिद्दत में पानी का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन इस लोड शेडिंग के बायस बाज़ औक़ात उन्हें पानी भी दस्तयाब नहीं होता, फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी बंद पड़े हैं। हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर इस लोड शेडिंग पर काबू पाए। जी, कराची के बाद रुख करते हैं कोयटा का, जहां पे आवाम को पानी की फराहमी की गर्ज से बनाए जाने वाले बेशुमार मंसूबे ताहाल तकमील को नहीं पहुंच सके, जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, मगर आवाम को इनसे कोई फायदा नहीं हुआ। खजाने को चूना लगाने वालों से कोई पूछने वाला नहीं। मजीद जानते हैं फरीदुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में।
में पीने के पानी का मसला गंभीर होने लगा। बिला किसी मनसूबा बंदी के हद से ज्यादा ट्यूबवेल्स लगने के बाद ज़ेर ज़मीन पानी की सतह तेजी से गिर रही है। साबिक दौर हुकूमत शहर में मुख्तलिफ मकामात पर ट्यूबवेल्स लगाकर पानी जखीरा करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से टंकियां बनाई गई, जो नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के सबब नाकारा पड़ी हैं और शहरी पानी को तरस रहे हैं। हमारे पानी का तो बहुत गंभीर मसला है और जो टंकी बनाई हुई गवर्नमेंट ने तकरीबन इसका 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, अभी तक न उस पर काम हुआ है। बहुत बुरा हाल है। यकीन करें जितना भी इधर खर्चा किया गया बेफालतू किया गया, कोई इधर हाल नहीं है पानी का। यकीन करें टैंकर पे भी महंगे हो गए, 2000 का टैंकर हो गया। शहर को पानी की फराहमी की जिम्मेदारी वासा और PHE की है, मगर नामुकम्मल मनसूबों के बारे में आज तक किसी से पूछगछ नहीं हुई। अब सूबाई हुकूमत ने पानी के 171 मनसूबे वासा के हवाले करने का फैसला किया है। वर्किंग हो रही है कि उसके सालाना कितने अखराजात हैं और हमारा बजट कितना बर्दाश्त कर सकते, लेकिन ये असूली तौर पर फैसला हो चुका है कि 171 जो ट्यूबवेल्स हैं उनको हम वासा के हवाले करेंगे, ताकि प्रॉपर, क्योंकि वासा के पास स्टाफ भी है और मेंटेनेंस की थोड़ा बहुत गुजारा है। वहाँ पे अभी कम्युनिटी के पास जब आप कुछ नहीं देंगे उनको पैसे, तो वो कौन अपनी जेब से करेगा। शहर के बेशतर इलाकों में बहुत से ऐसे ट्यूबवेल्स भी मौजूद हैं जिनको मशीनरी और बिजली की फराहमी नहीं की जा सकी। फैसलाबाद में जुमरा रोड पर वाक़ शुगर मिल्स रेलवे फाटक गुज़श्ता 2 सालों से पैसों की अदम अदायगी की वजह से बंद पड़ा है, जिससे राहगीरों को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसी पे रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से अब्दुल बासित। फैसलाबाद के झुमरा रोड पर वाक़या शुगर मिल्स मोड़ पर साल 1998 में अवामी फलाह व बहबूद के लिए रेलवे लाइन पर फाटक नस्ब किया गया था। फाटक को खोलने और बंद करने समेत दीगर मरम्मती कामों के लिए रेलवे और निजी ट्रस्ट के दरमियान मुआहदा तय पाया था, लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों से रेलवे और निजी ट्रस्ट के दरमियान फ़ंड्स के मामलात को लेकर मसाइल पैदा हो गए, जिससे रेलवे फाटक को 2 सालों से ताले लगे हुए हैं। गाड़ी सर पे आ जाती है, अमूमन एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। अगर यही खुला हो, आसानी से जाएंगे आएंगे, ट्रैफिक चलेगी। अब बाइक इधर से आती है, उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। पैसे इन्होंने नहीं दिए, मुसीबत आवाम को पड़ी हुई है। हादसे वगैरह तो आए दिन होते रहते हैं इधर, कभी वो इधर चोट लग जाती है अक्सर लड़कों को गुजरते हुए मोटरसाइकिल पे। मामले पर महकमा रेलवे के असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर कहते हैं निजी ट्रस्ट के साथ बातचीत जारी है, जल्द मसाइल हल करते हुए रेलवे फाटक को शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। पिछले कुछ अरसे से वो अपनी इस कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में नाकाम नहीं है। अब वो चूँकि पैसे अदा नहीं कर पा रहे, इसलिए हम आगे जो TLA लेबर है उनमें पेमेंट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये फाटक जो है ये बंद है। हमारी मीटिंग चल रही है उनके साथ, इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई इसका बेहतर वे आउट निकाल लेंगे। फाटक की बंदिश की वजह से रेलवे लाइनों के ऊपर से मोटरसाइकिलें गुजारते शहरी आए रोज जानलेवा हादसात का शिकार बनते रहते हैं। पैसों की अदम अदायगी की वजह से अरसा दराज से बंद पड़े ये रेलवे फाटक शहरियों के लिए वबाले जान बने हुए हैं, जिन्हें खोलने के हवाले से मुतअद्दिद बार अहकामात तो जारी हुए, लेकिन इन पर अमल दरामद करवाना शायद इंतजामिया ने ज़रूरी ना समझा। कैमरामैन सदाम अली के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद में बाद दोपहर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई है। सिंध में दादू, लड़काना, सखर और दीगर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की तवक्को है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बाद दोपहर बादल बरसने की पेशगोई है।